Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. So hello and welcome. My name is C. Rahul Kumar, and in this session we will discuss the Commerce and Accountancy Optional Paper 1 of UPSC Mains Exam 2024. Okay, so in this discussion I will take up the trend analysis, what kind of trend are emerging in the questions, the tracing of the questions from the previous year, and also what are the sources which we can refer for the purpose of preparation of the topics. Okay, so basically, first of all, if we see the paper at a glance, what is the breakup of the various subjects in terms of number of marks? So basically, at a glance, we have two sections, section A and section B. Okay, so in section A, question number 1 is compulsory and this question is theory question. In section B, question number 5 is compulsory and this question is also theory question. So basically, in section A, we have 4 subjects: financial accounting, cost accounting, taxation, audit. So if we see, there is a equal division of marks, 10, 10, 10, 10 in 3 subjects: costing, taxation, audit, and in the financial accounting, this is 20. Okay, so every year, sometime they will give 20 marks question from cost accounting, sometime they will give 20 marks question from taxation, and rest they will give 10, 10. So the point here is that in the compulsory, we have to prepare all the 4 subjects. And exactly same is the case of section B. In the section B, they have given the questions in both. Basically, in the financial management, okay, I need to check this. I think they have given 3 questions in financial management and 2 questions in financial marketing. Okay. Now coming to the choice-based questions. In the choice-based questions, they have given 2 questions of numerical in the financial accounting. One question is the amalgamation, general entries, and another question is the buyback of the shares. In cost accounting, they have given 1 question of process costing. In taxation, they have given 1 question of calculation of taxable income. And in the financial management, they have given total 3 questions. So in totality, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 questions they have given. Basically, in the paper, there are total 10 questions in the compulsory, and then 6 into 3, 18 questions in the non-compulsory. So there are total 28 questions. Okay, 18 plus 10, 28 questions may say. Out of 28 questions, only 7 questions are numerical, and rest of the questions, all these questions are theoretical, 21 questions. Okay, so the ratio between the numerical and theory is that in the compulsory question, there are total 10 questions theory. In the choice based, there are 11 questions theory, and in the choice based questions, 7 are numerical. So first of all, numericals are only in the choice based, and in the compulsory there are all theories, and the ratio of theory and numerical is 1:3. Okay, so 1 question of numerical, 3 question of theory. This is the ratio. Okay, I think this should make you clear about the pattern of the exam in terms of numerical versus theory. क्योंकि पेपर 1 में numerical और theory का एक मिक्स होता है, और नॉर्मली यही सेम मिक्स देखा जाता है. नॉर्मली आपका सेम मिक्स देखा जाता है. अगर हम देखें नंबर ऑफ मार्क्स में, तो नंबर ऑफ मार्क्स में न्यूमेरिकल इज 60 + 15 75 90 एंड 40 130 मार्क्स. 130 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम वी कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस. मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग आउट ऑफ ऑल दी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. सॉरी, 3 क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट. मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में से. सो ये 130 पूरा अटेम्प्ट नहीं हो सकता. ओके, थ्योरी में वी कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. ओके,
तो बेसिकली बात यह है कि थ्योरी आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल आपको कम ही करना पड़ेगा। हमेशा आपको ये रेशियो दिखेगा एग्जाम में। तो आप न्यूमेरिकल पे ओवर डिपेंडेंट मत होइए एंड डोंट थिंक दैट न्यूमेरिकल विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा एज। ओके, आपको थ्योरी अच्छे से करनी है, थ्योरी को अच्छे से रिमेंबर करना है। दोज पीपल हु रिलाई ऑन द थ्योरी दे आर वेरी गुड इन द पेपर वन। दिस ईयर मैनी पीपल दे चेंज देयर स्ट्रेटजी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि पेपर वन में थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए सो दैट योर डिपेंडेंस ऑन द न्यूमेरिकल इज रिड्यूस्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल देखते हैं और हमें एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रही होती, तो हम लोग न्यूमेरिकल में डर रहे होते हैं कि शुड वी गो फॉर इट और नॉट। जैसे कि दिस टाइम इट हैपेंड इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में सम पीपल दे वर not sure about the treatment of different economic life of old machine, new machine, in case of capital budgeting replacement decision. तो in that case some people were not sure how to proceed. तो उनके लिए suggested था कि वो उस क्वेश्चन को ड्रॉप करें. They can go for the question number 8. Question number 8 was completely theory. तो question number 8 में option A, B, C, all the three sub questions were theory questions. तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंस कम कर सकते हैं. न्यूमेरिकल से आपका टाइम सेव हो सकता है समटाइम्स, और मे बी यू कैन गेट मे बी 10% एक्स्ट्रा मार्क्स, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग आर ऑल्सो देयर. ठीक है, तो जब तक कि आप न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग, आप न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग ना हो, तब तक आप मान के चलिए कि आपको थ्योरी पे फोकस करना चाहिए. थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए, और थ्योरी में अच्छी बात यह है कि थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होती है, एंड द सेम पैटर्न वी विल सी दिस ईयर ऑल्सो. इस बार भी हम देखेंगे कि थ्योरी काफ़ी रिपीट हुई है, और अगर रिपीट नहीं भी हुई है तो वो आपका एक चॉइस क्वेश्चंस में है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, यू कैन रिमूव दैट. ओके, नाउ दिस इज एट ए ग्लैंस. अब हम बात करें, एक बार छोटा सा पेपर देख लेते हैं कि पेपर कैसा दिखता है. पेपर 1. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी, एंड यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रेस्ट. और यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रखना होता है 2+1 का. ये हमारे कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं. तो स्टार्ट करते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये आपको आंसर करने ही है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7. दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात करता है. फ्रॉम इन द पास्ट ईयर क्वेश्चन देयर इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. That's why some people, they did not prepare this well, and they were thinking, sir, we were not able to remember what was the significance. But actually significance कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसे नहीं है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन होगी. आपको प्रोविजन अगर क्लियर होंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ AS7, तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, और उसके बाद में प्रोविजंस और मेजर प्रोविजंस होते हैं. आपको पता होगा कि मेजर प्रोविजंस क्या हैं. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस को डिस्क्लोजर करना है हमें, और तो उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, उससे हमारा क्या पर्पस सर्व होता है, वही आपका सिग्निफिकेंस होगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक थिंकिंग चाहिए, यहाँ पर हमें लेटरल थिंकिंग चाहिए. वी शुड नॉट गेट इनटू दैट वी डोंट रिमेंबर द प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन तो पूछे भी नहीं गए. यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. आपसे वो ऑर्गेनिक थिंकिंग जानना चाहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. तो अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखें, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो वहाँ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन से भी आप कुछ कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, बिकॉज सिग्निफिकेंस ऑफ AS आर ऑल द AS हैव सर्टेन कॉमन पॉइंट. कुछ कॉमन पॉइंट सब जगह होते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी. ओके, और आपके जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करना. ओके, सो ये कुछ यूजुअल सिग्निफिकेंस हैं जो हमें मिलती हैं, जहाँ से ट्रांसपेरेंसी आती है, जहाँ से क्लैरिटी आती है, जहाँ से डिस्क्लोजर बेटर होता है, जहाँ से हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रॉपर होता है. सो इस तरह के पॉइंट्स आप मन में ला करके इस तरह के आंसर को जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द थॉट प्रोसेस वी कैन अप्लाई इन द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ एक्सप्लेन व्हाई द कंपनीज इशू राइट शेयर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है व्हाई द कंपनीज इशू राइट शेयर्स. अगेन, राइट शेयर इशू करने का पर्पस क्या है? तो राइट शेयर करने, जो राइट वर्ड है वहीं से हमें पता चल जाता है दैट इट इज राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. उनका एग्जिस्टिंग राइट है. तो ये एक हमारा लीगल ऑब्लिगेशन भी है, और अदर देन दैट ऑल्सो कंपनी कैन सर्व अदर पर्पसेस. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे अपने मॉडल आंसर्स में. लेकिन अभी यहाँ पर पर्पस है कि हम लेटरल थिंकिंग से भी इसको जनरेट कर सकते हैं. अगर हम कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज़ों को जानते हैं तो हम इस तरह के आंसर को जनरेट कर सकते हैं. इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में रखा गया है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक थिंकिंग को चेक किया जा सके. आपकी मेमोराइजेशन वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक थिंकिंग को टच किया गया है. हाउ आर राइट शेयर डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स. तो ये आपका कॉम्पोनेंट हो गया. एक
यहाँ पर और चीज ऑब्जर्व करने वाली है दैट इन द सिंगल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर दे हैव आस्क्ड 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि आपको 2 कंपोनेंट आपको आंसर करने हैं और दोनों कंपोनेंट को ही आपको इक्वल सिग्निफिकेंस देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया। ओके, 10 मार्कर क्वेश्चन है, काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, थोड़ा समराइज करके लिखना पड़ेगा आपको। वेरी वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी हमने इस बार पूछा था मेंस 24 में, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। कई बार से हम इसको देख रहे हैं कि ये एक पार्टिकुलर इंटरवल पर रिपीट होता है, तो वही चीज को प्रिडिक्ट करके मैंने इसको बहुत प्रिडिक्ट किया था और 2024 में ये हमें एग्जाम में देखने को मिला, तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट इज डिफाइन फेयर रेंट एंड एनुअल रेंट अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 2 चीजें देखने वाली बात है कि फेयर रेंट क्या होता है, एनुअल रेंट क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम लोग ये सब टर्म्स यूज करते हैं, तो इनका जो बेसिक मीनिंग है वो हमें क्लियर होना चाहिए, वो थ्योरेटिकल एंगल यहाँ से पूछा गया है। सो नॉर्मली दे आस्क क्वेश्चन ऑन द हाउस प्रॉपर्टी, लाइक इन द 2023 दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इस बार उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो ये हम फॉर्मेट बनाते हैं तो वहाँ पर ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये सब टर्म्स यूज़ करते हैं, तो हमें इसकी बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। और साथ में एग्जाम्पल भी पूछा गया है, तो एग्जाम्पल से ये हमें और बहुत बहुत सिंपल हो जाता है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हमारे लिए चीज़ों को और सिंपल कर देता है, हम इसे और एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, अपने आंसर को लाइव बना सकते हैं, और इसके थ्रू हमारे पास कंटेंट जनरेट करने का मौका मिल जाता है। हम जो एक डर हमारे अंदर होता है कि विल वी बी राइटिंग सफिशिएंट कंटेंट और नॉट, तो एग्जाम्पल आना एक अच्छी बात है, आप एग्जाम्पल को स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस कॉस्टिंग। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, तो आपको इसको भी एक अप्रोप्रिएट लेंथ में एक्सप्लेन करना है, इसको डिफाइन भी करना है। कोशिश कीजिए कि सीमा की डेफिनेशन से डिफाइन कीजिए, फिर इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। ओके, तो तकरीबन ऑलमोस्ट बिकॉज आपको 150 वर्ड्स टोटल लिखने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 वर्ड्स में जॉब कॉस्टिंग आपको लिखना चाहिए। देन प्रोसेस कॉस्टिंग को आप एक टेबल के थ्रू आप वहाँ पर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी वेल कवर्ड एवरीवेयर, आप हमारे मटेरियल के अंदर भी देखेंगे तो एक बहुत अच्छे से टेबल बना करके हमने उसको कंपैरिजन करके दिया हुआ है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ लोगों को डिफिकल्टी फेस हुई होगी शायद, तो वो लोग भी अगर एक राइट थॉट प्रोसेस रखते तो उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ये आपका सेक्शन ए का हो गया। नाउ आई स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस द कंपल्सरी क्वेश्चन फर्स्ट। तो कंपल्सरी क्वेश्चन के बारे में हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपल्सरी क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, बिकॉज कंपल्सरी क्वेश्चन तो हम छोड़ ही नहीं सकते, वी डोंट हैव ए चॉइस, राइट। तो सेक्शन बी में हम आते हैं अब। यस, तो एज यू मे बी अवेयर, सेक्शन बी में वी हैव 2 सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, सेम चीज रिपीट हुई है, इसको एज इट इज इसको रिमेंबर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, सो अगेन ये क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि न्यूज में काफी चलता था ये इस बार, ठीक है। काफी सारे मर्जर एक्विजिशन न्यूज में रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। अगर हम देखें पास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, तो मर्जर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर, इट वाज आस्क्ड इन 2023 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर पूछे गए थे। और एक्विजिशंस के बारे में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक्विजिशंस के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। और दिस ईयर दे हैव एक्चुअली मर्ज्ड बोथ ऑफ देम, इस बार इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि वो पहले जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस को पूछ रहे थे, इस बार उन्होंने उसको एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में पूछा है। हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी इस बार आ रहे हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग हमने देख लिया, वैसे ही मर्जर वर्सेस एक्विजिशन हमने देख लिया। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका डिफरेंशिएशन बेस्ड है वो है 5B, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। अगेन ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड क्वेश्चन है और कोर पार्ट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी तक ये क्वेश्चन आपका
10 मार्कर में पूछा जाता था, सिर्फ यहाँ तक इतना पोर्शन सिर्फ 10 मार्कर में पूछा जाता था. बट दिस ईयर दे हैव आस्क्ड सेकंड पोर्शन ऑल्सो, एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आरबीआई पॉलिसी फॉर द मनी मार्केट. और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी. हम देख रहे थे कि फेड ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा रिलैक्स किया है, और हर बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है एवरी 2 मंथ, तो पीपल आर लुकिंग एट दैट पॉलिसी, अकोमोडेटिव स्टैंस है. और ये बहुत ही करंट अफेयर्स में भी थी. तो हमने इसको मेंस के टेस्ट सीरीज में भी इस पर क्वेश्चन बनाया था, इसका मॉडल आंसर अच्छे से प्रिपेयर किया था, हमारी स्टूडेंट ने इसको लिखा भी था. सो ये यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो आपका एक क्वेश्चन ये बना और एक क्वेश्चन ये बना, पास्ट ईयर में अगर हम जाके देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे. ठीक है, 10 मार्कर में ये क्वेश्चन था, 10 मार्कर में ये क्वेश्चन था, लेकिन इस बार इन्होंने दोनों को मिलाकर के कंबाइनली पूछा है. तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके पास कंटेंट अपना शोकेस करने का मौका है, और एक चैलेंज भी है कि आपको कम टाइम में कम स्पेस में किस तरह से अपने कंटेंट को मैनेज करना है. ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, और दूसरा प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं उनको मर्ज करके आपको 2 क्वेश्चन को मर्ज करके सिंगल क्वेश्चन बनाया जा रहा है. ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन भी देखा, 5A भी हमने देखा, 5B भी सेम पैटर्न पे इन्होंने बनाया है. अब क्वेश्चन नंबर 5C, ये तो बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार आता है, फेवरेट क्वेश्चन है. एफएम का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के आर्गुमेंट देता हूँ वैल्यू एडिशन के लिए, इकोनॉमिक आर्गुमेंट, मैनेजमेंट आर्गुमेंट एंड अदर आर्गुमेंट. डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाई इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द प्रिफर्ड ऑब्जेक्टिव. वेरी 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 रिपीटेटिव क्वेश्चन, और ये तो आई थिंक टिप्स पे होगा हर किसी के लिए. इसको तो आपको पूरा कंप्लीट 2 पेज भरने हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए. 70% मार्क्स लेके आने हैं, ये आपके मार्क्स बूस्टर वाली चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन A, B, C तीनों के तीनों बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे, मतलब आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ आपको जो सिलेबस में दिया गया था आप वहाँ पर पढ़ के आए थे, प्रैक्टिस करके आए थे, और सीधा आपने जाके लिखा. इतना सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है. आपको जीएस के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, सीएस में 70% मार्क्स कभी नहीं मिल सकते आपको, और जीएस में आपको टॉपिक भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आते हैं. मैं इकोनॉमी का टीचर भी हूँ, इकोनॉमी भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अगर इकोनॉमी में 40 क्लासेस लेता हूँ तब जाके मैं स्टूडेंट को बोल सकता हूँ कि 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मैं 40 क्लासेस लेकर के मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपके कम से कम 200 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली आप एड्रेस कर सकते हो. तो ये डिफरेंस होता है ऑप्शनल और जीएस में. स्पेशली कॉमर्स ऑप्शनल में बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, तो कॉमर्स ऑप्शनल डिफिकल्ट नहीं है. हमें अगर इसके पेपर को हम देखें तो ये एक्चुअली वन ऑफ द ईजिएस्ट पेपर होता है. देन 5D, Indian capital markets are sound and well structured under SEBI supervision. Explain this statement. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस कपल ऑफ ईयर्स में हमारा जो स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो दैट इज डूइंग वेरी गुड. हमारा जो हाउस होल्ड सेविंग है वो कम हो गया है, फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर इट इज शिफ्टिंग टू द स्टॉक मार्केट. तो ये एक बहुत अच्छा, एक वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. हमने भी इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया था कि कैपिटल मार्केट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनना ही चाहिए, तो मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल मार्केट को लेकर बनाया था टेस्ट सीरीज में, और इस बार हमें देखने को मिला कि इसको पॉजिटिव वे में पूछा गया है. अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे कि सेबी का नेगेटिव रोल क्या है, सेबी की क्या लिमिटेशंस हैं, सेबी के अंडर में किस तरह का चल रहा है, सेबी का रोल क्या रहा है. लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छी लाइट में क्वेश्चन को पूछा गया है. Then 5E, investment decisions are more important than financing and distribution decisions in financial management. Discuss this statement. So this is again a very good question. Capital budgeting की importance बतानी है, why these are important. और इसके अलावा आपकी जो कैपिटल बजटिंग है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, इसी पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है. और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के बारे में भी हल्का हल्का एक्सप्लेन करना है. आपको कुछ थ्योरीज का भी यहाँ पे रेफरेंस देना होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर ई. तो ई के अंदर हल्का सा आपको कॉन्सेप्चुअल टच देना है, बाकी तो ये आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कहने की बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका डुएबल है, ईजी है, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में, इससे ईजी क्वेश्चन वास्तव में नहीं बन सकता. ठीक है, एक आपको पूरा टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल रहा है. एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स रिपीट हुए हैं, आप 70% के लिए यहाँ पे फाइट कीजिए, यानी कि 50 मार्क्स में से 35 मार्क्स आप यहाँ पे लेके आइए. ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया लगा कि कंपलसरी पेपर में किस तरह से हमारा पैटर्न रहा है. अब हम आते हैं जो हमारे चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस. जो हमने ये एनालिसिस बनाया है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी काफ़ी डुएबल होता है, सेक्शन बी प्रेफर्ड होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग यहाँ पर कवर होती हैं, तो ये इजीली मैनेजेबल पोर्शन होता है. सबसे पहले हमें
यहाँ पर देखना है कि हमारे इजी क्वेश्चंस कौन से आए हैं। तो इजी क्वेश्चंस में जो हमने डिस्कस किए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन, मनी वर्सेस कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी में आ गए आपके, ठीक है। और ये रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन अलग से आया है, कंपलसरी में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंबाइंड लिवरेज का क्वेश्चन आपका आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, ऑल ऑफ देम आर रिपीटेड, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ डायरेक्टली एज इट इज रिपीट होता है। कंबाइंड लिवरेज डायरेक्टली रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अब से पहले जो पूछा गया है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा गया है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सो दे आर आस्किंग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंडली दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन this year, that is combined leverage. Okay, classification of financial system, so many times it has been repeated in different manners, and working capital component, very basic question. तो थ्योरी क्वेश्चन तो भाई इजी आए हैं, इससे इजी क्वेश्चन थ्योरी के नहीं बन सकते, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कोई आपको डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन नहीं है। FMI is becoming current affairs based. As I told you, FMI में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिडिक्टेबल थे, because it all these are based upon the current affairs. तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी वो हमने देखा कंपल्सरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक क्वेश्चन है ट्रेंड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या ट्रेंड्स हैं, एंड एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है ये। हमने भी क्वेश्चन पूछा था IRDA के ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब मैं मेंस 24 के क्वेश्चन बना रहा था, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, व्हाट आर द रिसेंट रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, बट मैंने इसको विड्रॉ कर लिया। मैंने देखा कि पास्ट ईयर में तो IRDA पे क्वेश्चन आए हैं, कभी डायरेक्टली तो पूछा नहीं है उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। बट अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली इट वाज सरप्राइज फॉर मी कि यार हमने वो क्वेश्चन जो प्रिडिक्ट किया था, मेरे मन में आया था कि रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार, वो क्वेश्चन एक्चुअली आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो था कि क्या ट्रेंड हमने देखे हैं इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है। तो यू नो करंट अफेयर्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। और करंट अफेयर्स के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हैं उसी को आपको ऑब्जर्व करना है। इकोनॉमिक्स में जो एरियाज आप कवर करते हैं वही चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ऑल दिस इज Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. Part of the financial market, इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाता हूं, तो इकोनॉमिक्स में मैं जो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ाता हूं, आपको सिर्फ वो चैप्टर पे फोकस करना है। ओके, नाउ कैपिटल मार्केट्स डूइंग गुड अंडर सेबी, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है, मैंने आपको बताया। इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं इसको, और PYQ थीम भी है। इट इज अ कंबाइंड, बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, तो आप उसको याद करके जाएंगे और रिप्रोड्यूस करके आएंगे, डन आपका। न्यूमेरिकल का था देखते हैं। न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चंस केम। कैपिटल बजटिंग 1991 से रिपीट हुआ है, हल्का सा चेंज किया है उसमें। वर्किंग कैपिटल 2019 वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, मामूली से चेंज किया है। और NI अप्रोच में बेसिक क्वेश्चन पूछा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन NI अप्रोच का मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ फाउंडेशन कोर्स में, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो PYQ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बन सकते। कैपिटल बजटिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं, आई एग्री, बट अगर आपको कंफ्यूजन था तो आपको क्वेश्चन पिक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सिंपल फंडा है। न्यूमेरिकल पे कभी ओवर रिलाई मत कीजिए, थ्योरी को अपना बेस बनाइए, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थ्योरी में मार्क्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, मैं देखूं जयंत गर्ग थ्योरी, सुजावल जग्गा एंड सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं स्टूडेंट द्वारा। सेक्शन ए में मेजर ऑब्जर्वेशन, कंपल्सरी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे और थ्योरी पे। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें तो न्यूमेरिकल्स में आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन बहुत ही इजी था। 1992 का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट था, ठीक है जी। टैक्स में न्यूमेरिकल इट इज एज यूजुअल, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही है।
इस बार भी क्वेश्चन आया था टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोग ठीक करके आए हैं इसको। जनरल एंट्री एनिमल कमीशन, ये भी आपका 2021 के बाद में इस बार ये क्वेश्चन इस सिमिलर आया है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट उम्मीद थी कि जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी आई है और ऑडिट ऑफ एनपीओ का थ्योरी आया है और ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन ये भी आपका थ्योरी आया है। सो दीज आर द थ्योरी क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके थे सेक्शन ए में, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हुई है बायबैक वाले न्यूमेरिकल में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में था। क्वेश्चन नंबर 2 आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप एलिमिनेट कर सकते थे। एडिशनल डेप्रिसिएशन कंडीशंस, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये भी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में था। तो ये आपके एलिमिनेटेबल थे, ये आप एलिमिनेट कर सकते थे, इनकी वजह से आपको परेशान नहीं होना था। ओके, सो नए क्वेश्चन को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन सिर्फ आपकी चॉइस कम कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस वेरी वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। हो सकता है कि 250 के 250 मार्क्स आपके बराबर कंफर्टेबल ना हो, बिकॉज कंपलसरी में 1-2 आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लोगों को डिफिकल्टी फेस हुई थी। हो सकता है कि आपको 220 बहुत अच्छे से आता हो, 30 एवरेज या बिलो एवरेज भी आता हो, तो कोई बात नहीं, 220 पे हम गेम खेलेंगे, 220 को 70% स्कोर करेंगे और 30 वाले पे हम लोग 50% 40% भी स्कोर करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो वी शुड नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट ऑफ ऑल द 100% सिलेबस। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 70-80% बहुत अच्छे से करके आए और बाकी का जो हमारा है उसको एवरेज या हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन बिलो एवरेज भी चलेगा, तब भी आप 150 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो सर ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये एग्जाम में आए कहाँ से हैं, क्या ये प्रीवियस ईयर से आए हैं? जी, जैसे मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ वैसा ही है। यहाँ पर आप देखिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया है। ये सेम क्वेश्चन 17 में आया था। और प्रेजेंट स्टेट ऑफ आरबीआई पॉलिसी, आप ये देखें 16 में क्वेश्चन आया था ये, तो 16 और 17 को मिलाकर के इन्होंने एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। जो मैं आपको बता रहा था कि 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पहले पूछे थे, इस बार उन्होंने सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा है। एज इट इज रिपीट हुआ है, एफएमआई की बात मैं कर रहा हूँ। देन यहाँ पर देखिए explain the key classification of Indian financial system, make the diagram that depicts the entire financial system and its key component, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए briefly explain the component of Indian financial system, 10 मार्क्स में पूछा था, यहाँ पर डायग्राम भी ऐड कर दिया है तो मार्क्स भी ऐड कर दिए हैं, ओके। और एक चीज इस बार और हुई है, पेपर 1 में नंबर ऑफ पेज हैव इंक्रीज्ड। तो पहले क्या होता था कि वो 20 मार्कर 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस देते थे, अब उन्होंने इस बार पेपर 1 में थ्योरी में 4 पेजेस दिए हैं। आप 15 मार्कर हो चाहे 20 मार्कर हो, 4 पेजेस आपको थ्योरी में मिले हैं और न्यूमेरिकल में आपको 5 to 6 पेजेस मिले हैं। बल्ले बल्ले हो गए, मतलब आराम से खुल के करो आंसर अपना। लास्ट ईयर काफी डिफिकल्टी हुई थी लोगों को। लास्ट ईयर देखा गया था कि शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में 3 पेजेस मिले थे 20 मार्कर में, तो लोगों को बड़ा सरप्राइज मिला, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया अच्छे से। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है आपकी मेंटल स्पीड के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो यूपीएससी ने बहुत अच्छा किया है, पेपर 1 में नंबर ऑफ पेजेस को ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो अगेन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द लीडिंग फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो लीडिंग मतलब जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है, ये भी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों से देखेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पास्ट में बहुत बार आया भी है इस सिमिलर क्वेश्चन। और ये भी आपका एज इट इज रिपीट हुआ है। कहाँ से रिपीट हुआ है? आपका 2021 से। तो यहाँ पर 10 मार्कर क्वेश्चन था, 15 मार्कर इन्होंने इंक्रीज किया, लेकिन एक कंपोनेंट ये भी ऐड कर दिया। तो यानी कहने की बात ये है कि अगेन ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स करके और एक नया क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एज इट इज रिपीट हुआ 2021 से। तो एक चीज और देखने को मिलेगी कि 2020, 2019, 2021 यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है। देन इंडियन मार्केट्स के बारे में सेबी का जो रोल है, ये 2011 में नेगेटिव पूछा था और इस बार उन्होंने पॉजिटिव पूछा है, साउंड और यहाँ पर फेल्ड, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट डूइंग गुड और अभी फाइनेंशियल मार्केट अच्छा कर रही हैं। तो ये जिस समय जो करंट अफेयर्स में ट्रेंड चल रहा होता है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो, ओके। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस के ऊपर, ये आपका नया क्वेश्चन था। ये इस तरह का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं हुआ था पास्ट में। तो ये एक आपका एनालिसिस हुआ। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज एवरी टॉपिक हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगेन मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने सोर्सिंग की है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जी प्रीवियस ईयर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला जो क्वेश्चन आया था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मर्जर वेंचर एक्विजिशन, तो मैंने आपको बताया था कि 2014 में क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन आया और 2022 में क्वेश्चन आया। 22 में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2023 में मर्जर के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2014 में आपका एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और इस बार मिला के इन्होंने एक मर्ज करके सबका एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से करके अब ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग ईयर से क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसको मिला करके एक सिंगल क्वेश्चन बना देते हैं। ये एक इनका नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 2022 में, 2014 में, 10, 7, यानी कि ये तो इतनी बार रिपीट हुआ है ना कि ये आपको करके ही जाना है। और सब हमारी बुक्स के अंदर है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मटेरियल है, पेज नंबर 2023 पे। और ये डेली आंसर राइटिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज क्वेश्चन पूछा था आपका ये, और आपकी बुक में भी पेज नंबर 23 पे है। आप ये मटेरियल देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स आई हैव पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द बॉटम ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर मैं रेगुलर अपने ऑब्जर्वेशंस को शेयर करता हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हम लोग आपको रेगुलर टच में भी रखेंगे। टेलीग्राम कई बार न्यूज़ आती है कि टेलीग्राम इज़ गोइंग सोन, तो यू नेवर नो टेलीग्राम कब चला जाए, तो उस केस में आपको व्हाट्सएप काम आएगा। ठीक है जी, तो कहने की बात ये है कि ये जो PDF है ना, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये PDF आपको अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जा करके वहाँ पर आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, और उस PDF को जरूर देखिए, और इस वीडियो के जो डिस्कशन है वो आपको वहाँ पर पूरा मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं पूछा था मैंने टेस्ट सीरीज में, इस बार जो टेस्ट सीरीज मेरी हुई थी फुल एंड टेस्ट की, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड का तीनों का मिक्स एक मैंने क्वेश्चन पूछा था। 1991 में सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आया था। और रिप्लेसमेंट क्वेश्चन 1981 वाला रिपीट हुआ है विद माइनर एडेप्टेशन। FLT 1 में मैंने आपका रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन सिमिलर पूछा था। ठीक है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि अगर कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो आप प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आपको एक रियल एग्जाम कंडीशन वहाँ पर फील होगी, और आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, आप वहाँ पर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करेंगे। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6B, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है आपका, ये क्वेश्चन 2021 में लेटेस्ट आया था, 2018 में भी आया था, 17 में भी आया था, और फिर से आ गया। और ये देखिए हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेली आंसर राइटिंग था, जो हमने मेंस 24 में टेस्ट सीरीज की थी, डेली आंसर राइटिंग की थी, वहाँ पर भी मैंने यही क्वेश्चन आपका पूछा था, एज इट इज़। तो एज इट इज़ रिपीट हुआ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आने वाला है, और UPSC ने इस उम्मीद को मेरा पूरा किया, और आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला। डायग्राम बनाओगे, अच्छा मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6C, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज एंड इट्स इफेक्ट विद द एग्जांपल्स। पास्ट ईयर में 2012 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था DFL और DOL दोनों के ऊपर, एक्सप्लेन DFL, एक्सप्लेन DOL, और इस बार इन्होंने कंबाइंड ही पूछ लिया। तो यही चीज आप अगर कंबाइंड ही लिखेंगे, कंबाइंड वाला फॉर्मूला ऐड कर देंगे, तो आपका ये आंसर प्रिपेयर हो गया। राइट, सो ये भी हमारा मटेरियल में अवेलेबल है। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, ये आपका CACL मेथड से एस्टिमेटेड था, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए हमने डेली आंसर राइटिंग में भी ये दिया था मैंने। और 2019 का क्वेश्चन ये अडेप्टेड रिपीट हुआ है। 2019 से हमने इस बार उम्मीद की थी कि 2019 के कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो कि रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, NI अप्रोच का बेसिक क्वेश्चन था, जो कि हम स्टार्टिंग में कराते हैं। NI अप्रोच डिस्कस करते ही हम सबसे पहले न्यूमेरिकल यही कराते हैं, तो इसके अंदर कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल डिफाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल में कंपोनेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सो ऑल दैट इज अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करता है, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सो। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये तो अब मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपको, ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट का जो सेगमेंट है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ट्रेसिंग कर दिया ये, कि देखिए ये 17-16 में आया था, ये सेबी का रोल आपका कितने बार रिपीट हो चुका है, इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट 21 में आया था, क्लासिफिकेशन 2020 में आया था, इंश्योरेंस सेक्टर वाला क्वेश्चन नया था। ठीक है, और अगर हम हमारे आप टेस्ट सीरीज में देखोगे तो FLT में ये क्वेश्चन हमने पूछा था रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी का, FLT 3 में हमने क्वेश्चन पूछा था सेबी के ऊपर कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, और इसके अलावा FLT
सॉरी सेक्शनल टेस्ट में हमने 1B के अंदर पूछा था वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका ये फर्स्ट वाले सेगमेंट को आंसर कर सकता है। और हमारी जो FMI की बुक है वहाँ पर हमने ये की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर आपको मिलेगा ये पूरा। और ये जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर अंडर IRDA, इसका फर्स्ट सेगमेंट हमने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन सेकंड सेगमेंट हमने करंट अफेयर्स में दिया था, डायरेक्टली क्वेश्चन हमने टेस्ट में नहीं पूछा था। तो कहीं ना कहीं PYQ बेस्ड ही हमारी यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए। मॉडल आंसर भी हम आपको देंगे, इसके मॉडल आंसर्स थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों के आपको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जल्दी पोस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। अब आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट। ये आपका FLT में हमने इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को टच किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके बहाने आपका रिवीजन हो सकता था। अगर आपको ये वाला मॉडल आंसर भी याद रहता तो आप ये सिग्निफिकेंस लिख के आ सकते थे। इस वाले मॉडल आंसर से आप लेटरल थिंकिंग अप्लाई करते कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन से, तो आप ये आंसर कर सकते थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाई कंपनीज इशू राइट शेयर वर्सेस बोनस शेयर। ये क्वेश्चन भी हमने टच किया था, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन राइट शेयर की वैल्यूएशन और अकाउंटिंग, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो उससे भी सिंपल क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं अगर हमने कोई टॉपिक टेस्ट सीरीज में टच किया है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया है, 21 में, 2019 में, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिए कि 2021, 2019, 2020, तो यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर से न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है। बहुत ही रेयर है कि वो बहुत पुराना क्वेश्चन उठा के पूछें, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में पूछा या कैपिटल बजटिंग में पूछा। और ये इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि इससे हमारा जो प्रैक्टिस का दायरा है वो कम हो जाता है। प्रैक्टिस अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही करके चले जाएं तो वहाँ से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ जो लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ मत करो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो न्यूमेरिकल के, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो थ्योरी के, और जो क्वेश्चन वहाँ पे सिलेबस, जो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे सिलेबस ने अभी तक टच नहीं किया है, उसको एक बार एवरेज तरीके से पढ़ के चले जाओ। लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उसको एज इट इज आप अंडरस्टैंड करके, मेमोराइज करके, प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो PYQ बेस्ड प्रिपरेशन की जा सकती है। नाउ अमलगमेशन जनरल एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका 2021 के बेसिस पर रिपीट हुआ था। हमने भी क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था FLT के अंदर। FLT का मतलब फुल लेंथ टेस्ट होता है। और बायबैक ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नया था, थ्योरी पहले पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये एक नया ट्रेंड था ये, ठीक है। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में था, एलिमिनेट कर देते, मत प्रैक्टिस करो उसको। और क्वेश्चन है हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि UPSC ने 8 क्वेश्चन दिए ना आपको, आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5, तो डरना क्यों है आपको? चिंता नहीं करनी कि सर ये नया क्वेश्चन आ गया, ऐसे तो नेक्स्ट ईयर ये बोनस भी पूछ लेंगे, फिर राइट भी पूछ लेंगे। पूछने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे वो कर लेंगे, 5 क्वेश्चन तो हो ही जाने हमारे, ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, जॉब वर्सेस प्रोसेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2014 से रिपीट हुआ है। देखो जी, 10 साल पुराना क्वेश्चन भी आ जाता है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर में 10 ईयर के तो करने ही है अच्छे से आपको, ठीक है। और ये 1992 का रिपीट हुआ है जी, एज इट इज न्यूमेरिकल इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर आप ये करके गए होंगे तो यहाँ पर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, FIFO और एवरेज मेथड का फंडा खत्म, सिंपल डायरेक्टली आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, वैल्यूएशन करो क्लोजिंग स्टॉक का, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल अकाउंट बनाओ, हो गया काम आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देख के जाएंगे, बहुत ज़्यादा चूजी बनेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कोस्ट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ फोरसाइट एंड नॉट पोस्टमार्टम। सिमिलर क्वेश्चन आपका 1998 में आया है, जहां पर कोस्ट अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस पूछी गई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और चॉइस बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, तो इतना कोई टेंशन में नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे तो ये भी कर लेना। और देखिए एक चीज और है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2023 में भी पूछा था, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, और इस बार इन्होंने 10 मार्कर यहाँ पूछा, 20 मार्कर यहाँ पूछा, 30 मार्कर। प्रोसेस कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छी बात, मार्जिनल कॉस्टिंग पूछा ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लोग डर डर के कांपते थे कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाए, पूछा ही नहीं। अकाउंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट की थी, नहीं आई। तो बहुत सारी प्रिडिक्शन जो रॉन्ग हो जाती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिडिक्शन की थी, नहीं आई। ABC प्रिडिक्ट की थी, नहीं आई। मार्जिनल कॉस्टिंग तो मैं कहता था कि हर बार आता ही आता है, करके जाना चाहिए, नहीं आया। तो UPSC प्रिडिक्शन को गलत भी करता है, UPSC प्रिडिक्शन को गलत भी करता है।
बायबैक किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी प्रिडिक्ट की थी, नहीं आई। सो आपका इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि प्रीवियस ईयर को सारे करके जाओ, वहां पर चूजी मत बनो, बाकी जगह चूजी बन जाओ। बाकी जगह पे आप बोल सकते हो कि सर मेरा ये एरिया स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है, कोई बात नहीं। अगर इनकम टैक्स कोई स्ट्रांग नहीं था तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी। इनकम टैक्स में अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं किए तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी, आप उसके बिना भी मैनेज कर सकते थे। अगर आपका अमेलगमेशन अच्छा नहीं था, बायबैक अच्छा नहीं था, तब भी उसके बिना भी मैनेज कर सकते थे, क्योंकि कोस्टिंग में क्वेश्चन काफी इजी आया था, प्रोसेस कोस्टिंग क्वेश्चन काफी इजी आया था। देन कम्स टैक्सेशन। टैक्सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन में ये क्वेश्चन नंबर 1E तो हमने डिस्कस किया ही है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका 22 में से क्वेश्चन एज इट इज आया है, एज इट इज क्वेश्चन आया जी। और आपका ये जो 2C में ये सेकंड पोर्शन है, ये आपका इजी नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, अनकन्वेंशनल था। हमारी बुक में है, हमारी कंटेंट के अंदर है, ऐसा नहीं है कि हमने तो कवर नहीं किया, लेकिन इसके बारे में हम इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। ये फ्रैंक बात है, क्योंकि अभी तक पूछा ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं तो हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी होगी, तो हमने इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया स्टूडेंट्स ने, ज़्यादातर ने। कोई चिंता वाली बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एक एरिया आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन दूसरा देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी पूछा और टैक्सेबल इनकम भी पूछा। अगर जिसका इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन नंबर 4 उठाए, इसका इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 उठाए। तो आपको चॉइस दी है, आपको चॉइस दी है कि भाई आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप अटेम्प्ट कीजिए, इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कीजिए, आपका कोस्टिंग स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कीजिए। आपको चॉइस दे दी पूरी, कंपल्शन नहीं है, आपको मिक्सिंग नहीं की उन्होंने ज्यादा, ठीक है। तो ये एक अच्छा इजी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं कहीं ना कहीं, ओके। टैक्सेबल इनकम वाला जो क्वेश्चन था वो तो हमने बार बार पूछा है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा अनकन्वेंशनल था। कुछ लोग कह रहे थे सर ये तो हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, और बिल्कुल ये एक्सपेक्ट भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मत कीजिए आप, इनकम टैक्स आपका अच्छा नहीं है तो आप प्रोसेस कोस्टिंग कर लीजिए। एक तो आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेगा, या तो कोस्टिंग करो, या तो इनकम टैक्स करो, या तो अकाउंटिंग करो। अगर एक भी नहीं होगा तो वैसा तो नहीं चलेगा, एक तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये आपका कवर्ड अप है, पेज नंबर 109 पे हमारे बुक में कवर्ड अप है ये, ठीक है। और कोई भी अच्छा मटेरियल होगा वहाँ पे कवर्ड अप होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट ये नहीं कि हमारे मटेरियल में पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन आपको कहीं मिलेगा नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, ये स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल होता है, हर स्टैंडर्ड बुक में आपको एक प्रोविजन मिलेगा पीजीबीबी चैप्टर में। ऑडिटिंग हाईली इजी, बैंकिंग वेरी मच प्रिडिक्टेबल, 2020 में आया था, 2005 में आया। और डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को FLT 1 में, फुल एंड टेस्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4C में पूछा था, और यहाँ पर 1C में पूछा गया है, ठीक है जी। उसके बाद है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, कितनी बार रिपीट हुआ है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये हमारे मटेरियल में भी डायरेक्टली टेबल बना के इसको दिया हुआ है। ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, लेटेस्ट आपका 2019 में आया, 16 में आया, और हम डेली आंसर राइटिंग में भी इसको दिया हुआ था। और आपका इसमें जो एक नया ट्रेंड था वो ये था, थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन था लेकिन ईजी था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिट ऑफ मॉडर्न डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडर्न डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस होता है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं होता है। तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी वाले चेक्स होते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट होते हैं, और सेल्स वाले पॉइंट होते हैं, वो हमारा एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ों को यहाँ पर हमें फोकस करना था, ओके। सो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है 2024 का वो आपका प्रिडिक्टेबल था, आपका डुएबल था, PYQ बेस्ड था, ओके, और डुएबल था। आपको PYQ को प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस PYQ यू कैन टेक द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 1979 टिल 2024 फ्रॉम अस। तो अगर आपको कोई भी हमसे सर्विस चाहिए, आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज आवर ऑफिशियल नंबर 99537, ये 5 होगा 99537, ओके। हमारा ऑफिस ओल्ड राजेंद्र नगर में है, यहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन कोर्स, एंड यू कैन मीट मी, यू कैन टॉक टू मी, ओके, बाय कॉन्टैक्टिंग थ्रू दिस नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारा एक डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग द 2024 पेपर 1
मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, पेपर 2 सेपरेटली डिस्कस किया है, पेपर 2 की वीडियो सेपरेट है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी फर्दर support required from my side, feel free to contact us. Thank you very much. God bless you.